Good morning, everyone. Welcome to the Manolo classes in the session of daily news analysis. Today is 6th of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to first of all revise previous day session with the help of MCQs. Those who are new, we have a session daily for news analysis and we revise the previous day session with the help of MCQ. So I suggest you that you should reply these questions in the comment box so you can recall the previous day session. It will help you to remember the essential facts and concepts. So now first start with the question number 1 and try to reply the answer before I give you the correct answer. Ayushman Bharat scheme is associated with which of the following? किस ऑप्शन के साथ में ये अटैच्ड है? ये जो स्कीम है दैट इज आयुष्मान भारत. कल हमने डिस्कस भी किया था इंडिया में डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड किसी स्कीम्स के बारे में. तो देखो ये टू सेव गर्ल चाइल्ड, टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन, टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट. Actually, the scheme is to provide health facilities all over India. So the correct answer is C. Now we are going to second number question. That is, what is the aim of national list of essential medicines? Yesterday we discussed that the government of India has prepared a list of essential medicines. What is the aim of this essential list of medicines? To control the manufacturing of medicines in India, to promote export of medicines from India, to promote and regulate prices of essential medicines. The answer is C, because the main aim of this list is to monitor and regulate the prices of essential medicines. So the essential medicines should not be sold in the market on very higher prices, so which cannot be afforded by the common man और द पेशेंट्स. तो जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी अफोर्ड कर सकें बहुत सारी जो एसेंशियल मेडिसिन हैं. ऐसा ना हो कि कंट्री में जो पैरासीटामोल है उसी की रेट 500 रुपये हो जाए. तो सच काइंड ऑफ मेडिसिन हैव बीन लिस्टेड इन द एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन. क्वेश्चन नंबर 3. पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना इज एमिंग टू. दिस इज परियोजना दैट इज स्कीम और इसका एम क्या है, किसके लिए ये एम कर रही है? प्रोवाइड जेनरिक मेडिसिन एट लोअर अफोर्डेबल प्राइसेस, ओपन हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज, ओपन हेल्थ एजुकेशन स्कूल्स. द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट हैज ओपन्ड जन औषधि केंद्र. प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र. इन केंद्रों पर, इन सेंटर्स पर, दीज आर लाइक मेडिकल स्टोर्स और फार्मासिस्ट स्टोर्स as you find normal stores in the market. These stores provide generic medicines to the clients and at very affordable prices. So the option A is correct. Now question number 4. स्वच्छता green leaf rating is associated with. जो स्वच्छता green leaf rating है ये किससे रिलेट करती है? It is associated with promote leaf conservation in gardens. क्या ये कोई ऐसी स्कीम है? या provide ratings to selected forest, provide ratings for schools promoting environment protection, provide ratings for hygiene and sanitation for resorts. It actually the answer is D, because under this scheme the various hotels and resorts are provided ratings based on their efforts and their actions for hygiene and sanitation. So we can promote the tourism facilities all over India. So this is a scheme. Question number 5. The first 5 Swachhata Green Leaf Rating certificate of recognition has been obtained. अब इसमें सबसे पहला जो 5 रैंकिंग मिली है, जैसे 5 स्टार रैंकिंग होती है ऐसे ही इसमें भी रैंकिंग है. तो 5 स्टार रैंकिंग का सबसे पहले जो किसी को अगर सर्टिफिकेट मिला है तो वो कौन से रिसोर्ट को मिला है? A, B, C, D. So the correct option is बाइजन रिजर्ट्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में एक बाइजन रिजर्ट्स है जो कि मधाई नाम का एक रीजन है उसमें है. वहां पर ये जो रिसोर्ट है इसको 5 स्टार की रैंकिंग यहाँ पर मिली है, 5 रेटिंग मिली है. The entire world celebrates World Wildlife Day on.
So what is the day when all over the world we celebrate World Wildlife Day? So it is actually 3rd of March. ये हम 3rd मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ साइट्स कन्वेंशन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. कल हमने डिस्कस किया था कि ये साइट्स कन्वेंशन क्या है, तो आपको आइडिया यहाँ पे हो जाना चाहिए व्हाट इज साइट्स कन्वेंशन. इंटरनेशनल ट्रेड इन सम एनिमल्स एंड प्लांट्स, इंटरनेशनल अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ माउंटेन्स, इंटरनेशनल अलायंस फॉर वाटर कंजर्वेशन और नन ऑफ द अबव. एक्चुअली दिस इज इंटरनेशनल, ये जो साइट्स जो कन्वेंशन है ये इंटरनेशनल ट्रेड इन सम एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो उनमें भी सम कुछ सेलेक्टेड हैं, उनकी ट्रेड को रेगुलेट कंट्रोल करता है जिससे कि वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही जो है एक्सटिंक्ट कर जाए. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए ये कन्वेंशन है, दैट इज नोन एज साइट्स कन्वेंशन. ये साइट्स कन्वेंशन बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है इन वेरियस एग्जामिनेशंस. पोर्ट ऑफ नाहवा शेवा इज लोकेटेड इन. जो नाहवा शेवा पोर्ट है वो कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी में, रेड सी में या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में. कल हमने डिस्कस किया था कि नाहवा शेवा पोर्ट, इसके आसपास वाले रीजन में पाकिस्तान के लिए एक शिप जा रहा था जो कि चाइना से आया था. उसमें कुछ मटेरियल था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ने सीज कर लिया बिकॉज वो न्यूक्लियर वगैरह से रिलेटेड मटेरियल था, ड्यूअल यूज प्रोडक्ट थे उसमें थे. तो यहाँ हमने कल डिस्कस किया था कि जो पोर्ट ऑफ नाहवा शेवा है ये कहाँ पर है, क्या इसका कंडीशन है, इसके बारे में हमने बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया था. तो एक्चुअली इट इज इन द अरेबियन सी. आपको पता होगा कि ये इंडिया का, अगर हम इसको मैप मान लें तो दिस साइड इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस साइड इज अरेबियन सी. ठीक है, तो ये है आपका. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच वन इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का बिजिएस्ट सी पोर्ट क्या है? तो ये है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. इसी को, ये जो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन सी के थ्रू होता है, इसी के थ्रू होता है. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज. इस पोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? देखो, जो मैं आपसे यहाँ पर कमेंट में इन क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की जब बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब एफर्ट्स करेंगे रिप्लाई करने के लिए, आप हो सकता है रॉन्ग आंसर दें, आप राइट दें, हो सकता है आपको पहले से ही आता हो, यू रिमेम्बर, आपको पहले से पता हो सकता है आपको यू डोंट नो दैट आंसर. बट आप क्या करते हैं कि जब आप रिप्लाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गूगल करें. जब आप गूगल कर रहे हैं तब भी आप उस प्रोसेस में आप लर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ. ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस है कि आपको कैसे भी चीजों को समझ में आए, आप उन चीजों को रिकॉग्नाइज करें, अंडरस्टैंड करें, जो एसेंशियल फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप लर्न करें. आप भले ही गूगल करके रिप्लाई करो, आपको आता है तब भी रिप्लाई करो, नहीं आता है तब भी आप रिप्लाई करो. बिकॉज जब आप रोजाना छोटी छोटी चीजों पर कमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी मेमोरी में वो चीजें परमानेंटली सेव हो जाएंगी. ठीक है, तो देखो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसी को हम नाहवा शेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं. यू नो कि जब जिन चीजों को हम लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं या कहीं मोबाइल पे टाइप करते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं, वो जो टाइपिंग की प्रोसेस है, जो राइटिंग की प्रोसेस है, जब आप आंसर लिख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है कि उस कॉन्सेप्ट को, उस फैक्ट को हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में सेव करने का काम करती है. ठीक है, तो आपको कभी भी हेजिटेट नहीं करना है. रॉन्ग या राइट आंसर जो भी आपको आता है, गूगल से सर्च करके आता है, उसको लिखो आप. ठीक है, आप कॉपी में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, ये आपको हेल्प करेगा. हम आते हैं अब आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पर. नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इंडिया का फर्स्ट नेशनल जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, इसको हमने इनॉग्रेट किया है. कहां पर? पटना में. पटना कहां पर है? बिहार में. एशिया में ऐसा ये फर्स्ट काइंड हो रहा है. फर्स्ट टाइम एशिया में डॉल्फिन के रिसर्च और उसके लिए जो है ये रिसर्च सेंटर जो है डॉल्फिन के लिए एस्टेब्लिश हुआ है, वो भी इंडिया में. तो पूरे एशिया के लिए बड़ी बात है. इट विल सर्व एज अ गैदरिंग पॉइंट फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स. तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन्स है, इनकी स्टडी के लिए सेंटर क्या होगा? डेडिकेटेड रहेगा. की पॉइंट्स अबाउट गैंगेटिक डॉल्फिन, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, पहले भी हम इसको रिवाइज कर चुके हैं. मैं आपसे पूछ लेता हूं कि गैंगेटिक डॉल्फिन्स का एक नाम और है.
ठीक है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं। क्या आप वो उस फैक्ट को रिकॉल कर सकते हैं? ठीक है, उसको इस नाम से हम जानते हैं। दूसरा, जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स होती है वो एसेंशियली क्या होती है? ब्लाइंड होती है। ठीक है, चलिए, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। वन ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीसीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितनी भी फ्रेश वाटर की डॉल्फिन पाई जाती है उनमें से ये एक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, मेघना हो, कर्णफुली हो, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, इस वाले रीजन में हमको ये मिलती है। इट इज इन द एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ IUCN। IUCN की जो लिस्ट इश्यू करता है ये, ठीक है, उसकी लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं IUCN की कौन कौन सी लिस्ट आती है? ठीक है, उसका नाम है एक, और वो किसी कलर पर बेस्ड है उसका नाम। ठीक है, IUCN की लिस्ट, और उसमें एक कलर है, कलर का नाम है उस लिस्ट के नाम में। जैसे मैं कहूँ IUCN की व्हाइट लिस्ट, जबकि व्हाइट मीन्स एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये है नहीं, यहाँ पर एक कलर का नेम यूज होगा। ठीक है, अब बताइए कमेंट में कि आपको पता है कि नहीं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन वॉज स्टार्टेड इन 2021। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को हमने 2021 में स्टार्ट किया था। ये वैसे ही स्टार्ट किया था जैसे हमने 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मुझे बताओ प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? ठीक है, चलो बता दो मुझे कमेंट में, गूगल करके भी बताएंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है हैबिटेट हैज बीन नोटिफाइड एज प्रोटेक्टेड एरियाज। अब जहां पर ये डॉल्फिन्स हैं उनके लिए, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी, इसको अलग से एक सेंचुरी बना दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, जो एक मीन्स कुछ वंडरफुल जो थिंग्स हो रही होती हैं तो उनको मोस्टली क्वेश्चंस में आस्क कर लिया जाता है एग्जामिनेशन में, बिकॉज कोई नई चीज हो रही है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी ही बना दी यहाँ पर एक अलग से। जैसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं, तो ये भी अपने आप में नई बात है। ठीक है, इस महिला को देखो भाई, है लोग ज्यादा फैशन के चक्कर में, ज्यादा टसन और स्वैग के चक्कर में क्या कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, है ना, भूल ही जा रहे हैं कि भाई हमें क्या खाने के लिए बनाया है नेचर ने, हमें क्या खाना चाहिए। अब हुआ क्या क्या कि गुड़गांव में, देखो गुड़गांव में आप सब जानते होंगे बहुत सारे मॉल्स वगैरह हैं, कैफे वगैरह हैं। ये कैफे है ला फॉरेस्टा कैफे एट सफायर मॉल इन सेक्टर 90 में है गुड़गांव में। हुआ क्या, यहाँ पर जो वेटर है ना, उसने ये ड्राई आइस को सर्व कर दिया। ठीक है, अब देखो देखने में तो आइसक्रीम जैसी लग रही है, ठीक है, लेकिन ये आइसक्रीम तो नहीं है। अब ड्राई आइस को इन्होंने क्या कर दिया, वहां पर सर्व कर लिया और लोगों ने उसको ईट कर लिया, खा लिया वहां पर। ठीक है, अब भाई जब आप ड्राई आइस खाओगे तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे वो सब आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज ड्राई आइस। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में इसको पूछ लिया जाता है साइंस की नॉलेज में। ठीक है, तो उससे क्या हो गए, फिर 5 लोग थे, 5 डाइनर्स थे, 5 डाइनर्स, और रिजल्ट क्या हुआ जब उन्होंने उसको खा लिया, तो रिजल्टेड इन देयर हॉस्पिटलाइजेशन। भैया हॉस्पिटल में इनको एडमिट करना पड़ा, बीमार पड़ गए। क्या है ये ड्राई आइस, आओ समझ लेते हैं ठीक से। इट इज कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसी को बोलते हैं ड्राई आइस। तो ऐसी लगती है हमको ड्राई जैसी। ठीक है, तो ड्राई आइस को हम, एक नाम और है उसका कार्ड आइस भी इसको हम बोलते हैं। तो जब भाई आप क्या खाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप खाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये डेथ भी हो सकती है इससे, अगर ज्यादा मात्रा में इसको खा लिया तो। ठीक है, इट गेट्स दिस नेम बिकॉज इट डज नॉट मेल्ट इनटू अ लिक्विड। इसका ड्राई आइस इसलिए हम इसको कहते हैं कि जब इसको आप हीट करोगे तो ये मेल्ट होकर के इसका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। नॉर्मली जैसे हमारे पास में आइस होती है, उसको जब आप थोड़ा मेल्ट करोगे तो क्या बनेगा, उसका वाटर बन जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो कार्ड आइस है, दैट इज ड्राई आइस, ये कन्वर्ट नहीं होगी वाटर में या लिक्विड में, ये सीधी क्या हो जाएगी, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ से आपको एक और आइडिया मिलेगा, देखो नया फैक्ट, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, इसको हम सब्लिमेशन की प्रोसेस बोलते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा 10th तक जब आपने साइंस पढ़ी होगी तो। क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जिस प्रोडक्ट की सब्लिमेशन होती है?
जब हम उसको जलाते हैं या कुछ भी करते हैं, जलाएं ना, नहीं भी अगर उसको जलाएं और यूं ही खुला छोड़ दें, तब भी क्या होगा, वो वहां से बिल्कुल गायब हो जाएगा अपने आप, रखे रखे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिंट देता हूँ कि जब घरों में पूजा आरती होती है, मंदिर में कहीं धूप बत्ती वगैरह से जलाते हैं, तो उसको भी ऐसे ही जलाया जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, अच्छी खुशबू आती है उसमें से, और उसको अगर आप खुले में ऐसे ही रख दें तो वो जल जाएगा, मीन्स जो है उड़ जाएगा अपने आप, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाम बता दो चलो मुझे उसका। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन CO2 इज कूल्ड अंडर प्रेशर। तो जो ड्राई आइस है, जब हम CO2 को बहुत ज्यादा प्रेशर में कूल करते हैं तो जो है क्या हो जाती है, वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर में इसको स्टोर करके रखा जाता है। ड्राई आइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोल्ड बाथ्स। कोल्ड बाथ के लिए भी इसको कई बार यूज किया जाता है इन द लेबोरेटरी फॉर मिक्सिंग इट विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और भी कुछ चीजें इसमें जो मिला दी जाती हैं। ठीक है, तो उसके साथ मिलकर के इसमें कई बार कोल्ड बाथ के लिए हम इसको यूज करते हैं। It is also used as a coolant for preserving perishable articles in the food. फूड के बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्योरिंग लोकल बर्न्स, जैसे कहीं जल जाता है हाथ वगैरह तो वहां पर भी इसको यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में इसको खूब यूज करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशंस में। ठीक है, जो घाव वगैरह वो सब होते हैं। और इट इज कंसिडर्ड लीथल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए अगर भाई इसको खाओ पियोगे तो और क्या हो जाएगी, इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जो ड्राई आइस है, एक काम और आती है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या 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 करते हैं, जो आइस बाथ लेते हैं। ठीक है, तो अब आइस बाथ के लिए मान लो कोई राजस्थान में है स्पोर्ट्स पर्सन और उसको आइस बाथ लेना है, तो क्या करेगा वो ऐसा थोड़ी है कि लद्दाख जाएगा आइस बाथ करने के लिए कि वहां नॉर्थ पोल पे जाएगा, तो क्या करते हैं, इसी आइस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को बहुत सारी मीन्स हीट की प्रॉब्लम होती है ना बॉडी में, उनके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये इंडिया का नया स्पेस पोर्ट। ठीक है, क्या है, कुलशेखर पट्टिनम। ये नया स्पेस पोर्ट इंडिया में अब बन रहा है। रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तूथकुडी। ठीक है, तूथकुडी, इसमें इसको क्या कर दिया है, स्टैब्लिश किया है। अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है, मींस सॉरी फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है, बहुत जल्दी ये बन भी जाएगा। इसकी जरूरत क्यों है हमको, क्या है ऐसा इसमें स्पेशल, तो चाहिए जान लेते हैं। देखो, अभी तक हमारे पास में सतीश धवन स्पेस सेंटर है दैट इज श्रीहरिकोटा, जिसको हम कई बार बोल देते हैं आंध्र प्रदेश में। अब हमने कहा बनाया है, ये इधर बनाया है। ठीक है, तमिलनाडु के तूथकुडी वाले डिस्ट्रिक्ट में। होता क्या था, जब यहाँ से श्री जो हरिकोटा है, यहाँ से जब लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट्स, तो क्या करते हैं तो भाई गलती से वो इधर ना चला जाए, जैसे ही लॉन्च करेंगे तो इधर चला जाता है। तो हमको क्या करना पड़ता था कि उसको पहले ईस्ट की तरफ मूव कराते हैं उस रॉकेट को, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, फिर उसके बाद वो इधर आकर के ऊपर की तरफ उठता है। तो उसमें क्या होता है कि डर रहता है कि भाई श्रीलंका के स्पेस में कहीं वो जो है एंटर ना कर जाए और वहां कोई दिक्कत हो जाए। मीन्स भाई हम, जैसे हमारी बाउंड्री होती है, ठीक है, हम मान लो सपोज करो आप ट्रेन चला रहे हैं, तो अपनी ट्रेन को श्रीलंका में थोड़ी चली जाए गलती से, तो भाई श्रीलंका तो ऑब्जेक्शन करेगा। तो हमको ये दिक्कत होती थी। अब क्या किया, बोला हम यहाँ पर बनाएंगे, तो हमारे पास यहाँ देखो कितना सारा स्पेस मिल गया। तो ये श्रीलंका के एयर स्पेस में एंटर नहीं करेगी, हमारा कोई स्पेस व्हीकल होगा वो। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, सबसे बेसिक बात है। इट विल बी यूज फॉर लॉन्च स्मॉल स्केल के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होंगे उनके लिए इसको यूज किया जाएगा। लार्ज के लिए तो हम उसी को यूज करेंगे जो पहले से है श्रीहरिकोटा। इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं श्रीहरिकोटा के कंपैरिजन में। इट इज लोकेटेड मोर क्लोज टू इक्वेटर। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इक्वेटर देखो इसके ज्यादा नजदीक होगी या इसके ज्यादा नजदीक होगी। आपको पता होगा कि ये हो गई अर्थ, इसके बीच से जाती है इक्वेटर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें कौन इक्वेटर के पास होगा, तो ये वाला। तो ये जो नया वाला हम जो बना रहे हैं ये इक्वेटर के ज्यादा पास होगा, प्रोक्सिमिटी इसकी ज्यादा है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा भाई, अगर इक्वेटर के पास में है तो जो रॉकेट्स हैं जब लॉन्च किए जाते हैं तो आपको पता होगा कि इक्वेटर वाले रीजन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है, तो रॉकेट आसानी से ऊपर उठ जाता है, फ्लाइट ले लेता है अपनी। तो रॉकेट्स के नाउ हेड स्टेट इन द सदर्न डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्ट वो क्या कर सकते हैं, अपनी हाइट ले सकते हैं। फ्रॉम श्रीहरिकोटा फैसिलिटी द रॉकेट, जब हम तो उनको पहले हमें ईस्ट की तरफ भेजना पड़ता था जिससे कि हम बचा सकें श्रीलंका के एयर स्पेस को।
नियर बाई इसरो के प्रोपल्सन सेंटर है वहीं के आसपास में, तो चीज़ों को जो है ट्रांसपोर्ट करने में, उन रॉकेट के कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उनको कैरी करने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो इसलिए भी हमने इसको क्या किया, वहां पे स्टैब्लिश किया है। ठीक है, चलो एक नई स्कीम आई है, दैट इज अदिति स्कीम। क्या है ये स्कीम? अदिति स्कीम देखो ये क्या है, एसिंग, ए फॉर एसिंग, बी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इनोवेटिव और टी फॉर टेक्नोलॉजीज विद आई डेक्स। ये मींस ये चार वर्ड तो इसके हो गए यहाँ पर, ये ए डी और आई और टी। अब ये इसमें आई क्या है, तो आई का मतलब है यहाँ पर आईडेक्स। ठीक है, वो आयोडेक्स नहीं है जो दर्द होता है तो लगाते हैं, वो नहीं है। तो ये एक स्कीम है जो एशियन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी, पहले से चल रही है एक स्कीम आईडेक्स, इसके साथ मिलकर के ही एक नई स्कीम आई है जो दोनों मिलकर के काम करेंगे। इट इज अ स्कीम टू प्रोमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। इंडिया की जो क्रिटिकल और डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनमें नया नया इनोवेशन वगैरह करने के लिए ये स्कीम हमारे पास में इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस ने इसको लॉन्च किया है। अंडर दिस स्कीम क्या होने वाला है कि जो भी प्राइवेट स्टार्टअप वगैरह होंगे वो एलिजिबल होंगे ग्रांट इन एड के लिए, उनको फंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 25 करोड़ रुपए तक का, अगर वो कुछ ऐसा अपना दे रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है कि इंडिया की जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो भी आए इस मार्केट में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करें। तो उससे क्या होगा, जैसे अभी तक हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन कंट्रीज पर हम क्या है, डिपेंडेंट है, यूएसए से मंगाते हैं, कभी रसिया से मंगाते हैं, कभी इजराइल से, कभी फ्रांस से, है ना। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज वहां से हम क्यों मंगाते हैं? देखो वहां की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है उसमें वहां का जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो बहुत डेवलप्ड है, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर को बहुत पहले से ही क्या दिया गया था, जो है फैसिलिटीज दी गई थी उनको, जो है उनको फ्री छोड़ दिया गया था, ठीक है आप भी डेवलप कीजिए। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही नहीं था कि वो डिफेंस की कोई टेक्नोलॉजी बना सके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उनको अलाउ के साथ साथ हम उनको प्रमोट भी कर रहे हैं और जो है हम उनको फंडिंग भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। द आइडिया बिहाइंड स्कीम्स इनिशिएटिव्स, अब इन सबके पीछे क्या आइडिया है, चाहे वो अदिति हो, आईडेक्स हो, आईडेक्स प्राइम हो, ये जितनी भी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स के पीछे का आइडिया है वो ये है कि इंडिया की सोसाइटी को नॉलेज सोसाइटी में हम कन्वर्ट करें, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर हम बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को, जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उन सबको हम लॉन्च कर सकें बड़ी आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024, WB और एल इंडेक्स बोलते हैं इसको कई बार। तो वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स ये एक इंडेक्स है जो विमेन को क्या क्या उपलब्ध है, अवेलेबल है, किसमें, बिजनेस में और लॉ में। ये इंडेक्स ऐसी इंडेक्स है जो रिसर्च करती है, कंपेयर करके बताती है कि बिजनेस के फील्ड में और लॉ में वुमेन को कितनी इक्वालिटी है। ठीक है, इस पर ये रिसर्च करके डेटा प्रोवाइड कराती है। 2024 की जो रिपोर्ट है इसकी 10th एडिशन इसका है ये। दिस इंडेक्स इज फॉर मेजरिंग द इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन 190 इकोनॉमी, मीन्स दुनिया के 190 देशों की इकोनॉमी जो है वहां पर ये इंडेक्स ये देखती है कि वुमेन के लिए कैसा आप एनवायरनमेंट इनेबल कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो कि वो भी इकोनॉमी में अपना बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सके। कौन इसको रिलीज करता है, जब भी आप इंडेक्स पढ़ें तो ये जरूर ध्यान रखें कि इसको रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, द रिपोर्ट कवर्स 8 एरियाज, 8 फैक्टर्स को ये काउंट करती है कि हम उसको जो है उस कंट्री को हम कैसे देखेंगे, किस नजरिए से देखेंगे। कि मीन्स वहां पर मोबिलिटी की क्या फैसिलिटीज है, वर्क प्लेस कैसा है, पे कैसा मिलता है महिलाओं को, उनकी मैरिज को लेकर के क्या इश्यूज हैं, पेरेंटहुड में महिलाओं को, जो वुमेन है उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इक्वालिटी है कि नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स वो अगर अपना बिजनेस करना चाहती है उनके नाम असेट्स वगैरह होते हैं कि नहीं, और ओल्ड एज में उनको पेंशन वगैरह की क्या फैसिलिटीज हैं। सो दीज आर द 8 फैक्टर्स विच आर कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस इंडेक्स। इन फैक्टर्स के बेसिस पर इस इंडेक्स को डेवलप किया जाता है। दिस इंडेक्स मेजर्स हाउ लॉज एंड रेगुलेशंस अफेक्ट वुमेन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कि जो किसी भी कंट्री के जो लॉ हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कैसे जो वुमेन हैं उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट करती है। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दूं सऊदी अरबिया हो गया, मैं आपको एग्जांपल दे दूं ईरान का। अगर आप ईरान जाएंगे, इराक जाएंगे, सऊदी अरबिया जाएंगे, ठीक है,
ऐसे कंट्रीज में जाएंगे तो वुमेन को वहां पर इवन अपने आप को खुले छूट नहीं है पढ़ने के लिए। तो ये कंट्रीज तो बहुत लोअर रैंक पर रहेंगे। जब आप वुमेन को पढ़ने ही नहीं दे रहे हो, गर्ल्स को, तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या मिलेंगी उनको, फिर वो कहाँ से अपने बिजनेस खड़ा कर पाएंगी। मीन्स अभी तक सऊदी अरबिया में और भी कंट्री ऐसे हैं, अब सऊदी अरबिया में अभी रिसेंटली वहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि महिलाएं अब घर से बाहर अकेले जा सकती हैं बिना किसी बॉय के, अपना पति या उनका बेटा या भाई उनके बिना। अब उनको अलाउ किया है कि वो विदेश पढ़ने भी जा सकती हैं बिना किसी के साथ के। तो अब सोचो, अब से पहले जो महिलाएं थी उनको बेचारे घर से बाहर तक निकलने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, तो अदर कंट्रीज को अगर हम देखेंगे, जब इन यहाँ पर विमेन को घर से बाहर निकलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फिर वो इकोनॉमी में कहाँ किसी कंपनी का मैनेजर बनेंगी, कहाँ किसी कंपनी की सीईओ बनेंगी, या कहाँ किसी जो है कंट्री की प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेंगी। तो क्या आप सोच सकते हो कि आप सोच रहे हैं कि ईरान में, इराक में, सऊदी अरबिया में, बहरीन में, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इसमें क्या कोई महिला कभी भी वहाँ की पीएम या जो है वहाँ का जो चीफ बन सकती है? कब भी नहीं बन सकती, फिलहाल के लिए तो नहीं बन सकती। क्यों? वहां पर उनको ऐसा कोई राइट है ही नहीं। ठीक है, वहां पर इवन एजुकेशन तक के उनको राइट्स नहीं है। कार चलाने का राइट सऊदी अरबिया वगैरह में अभी रिसेंटली मिला है कि वो महिलाएं कार चला सकती है, वरना वो भी नहीं था। ठीक है, इट इज मेजर्ड ऑन स्केल फ्रॉम 0 to 100। जैसे हम एक और इंडेक्स थी जिसको हम जो है कैलकुलेट कर रहे थे अभी रिसेंटली, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल उसको रिलीज करती है, होती है ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, है ना, आपको ध्यान होगा। तो वहां पर भी 0 से 100 के स्केल पर इसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ अगर कोई कंट्री 100 मार्क्स जो है गेन करता है, तो इसका मतलब वहां पर महिलाओं के लिए एकदम पूरी तरह से इक्वालिटी है। और जिसका स्कोर कम आता है, इसका मतलब वहां पर इक्वालिटी नहीं है। इस अब रिसेंटली अभी जो रिलीज हुई है 2024 की इंडेक्स, इसकी हाइलाइट्स अगर हम देखें कि क्या इस बार हुआ इसमें, तो ग्लोबली नन ऑफ द कंट्रीज हैज अ फुल स्कोर। तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है वर्ल्ड में जिसको अभी 100 में से 100 मार्क्स मिले हों इस स्कोर में। अगर किसी को 100 में से 100 मिलते तो इसका मतलब उस कंट्री में फुल क्या है, इक्वालिटी है। तो इसका मतलब जो अमेरिका हो गया, स्वीडन हो गया, जापान हो गया, कोई भी कंट्री हो गया, उसमें 100% इक्वालिटी नहीं है मैन और वुमेन की, किसी भी कंट्री में। ठीक है, इट मीन्स दैट वुमेन डिड नॉट एंजॉय। अब इसी के बेसिस हम कह सकते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कंट्री में अभी महिलाओं को इक्वल राइट्स नहीं है जो मैन के कंपैरिजन में। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो हमारी रैंकिंग है 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। अब इसको डिटेल में हम बाद में क्लास वगैरह में डिस्कस करेंगे, या इसको हम डिस्कस कर लेंगे, जो है वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे यूट्यूब के लिए, कि वहां पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि टॉप किसने किया है, लास्ट रैंक किसकी है ना, ये सब। Indian women enjoyed 60% of the legal rights given to men as per the new report, lower than the global average। ग्लोबल एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज ये निकल करके आता है कि उन पूरे ग्लोबल लेवल का जो स्कोर है वो है 64% के आसपास। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का 100 में से इंडिया का 60% है। यहाँ इससे ये पता चलता है कि इंडिया में जो इक्वालिटी है, 60% ऐसे फील्ड हैं जहां पर मैन और वुमेन इन सबको इक्वल राइट्स है। ठीक है, बाकी इसका मतलब 40% अभी हमको रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है कि विमेन अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सके। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और कीप इट अप, रिप्लाई भी करते रहिए, और पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जो है करते रहिए। उससे क्या होगा, दूसरे कैंडिडेट्स को भी चीजें अच्छा लगती है, पता चलती हैं, और यूट्यूब उसको प्रमोट करता है कि लोगों को अच्छा लग रही है ये चीजें, तो सब तक पहुंचना चाहिए। चलिए एंड करते हैं आज के सेशन को, इन द होप दैट वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। सो गुड बाय, टेक केयर।